Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking the class 10th photosynthesis, right? Photosynthesis, as you know already, it is the important activity of all green plants, whether flowering or non-flowering, whatever it may be. There is the difference between the plants and animals. Animals cannot make their own food, while plants, they are able to make their own food. So photosynthesis is the process by which green plants make their own food in presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Only green plants, they can trap solar energy and convert it into chemical energy in the form of organic food. So photosynthesis is the link between solar energy and the energy required by the plant. On the surface of the earth, the source of energy is the only one, that is the sun. This solar energy is from the sun. It is trapped by only the green plants. It is trapped only by the green plants, and then through these plants it passes to the different animals through the food chains. So it is the ultimate source of energy is the sun, and photosynthesis is the process where all living organisms are able to get the energy. So all biological process which release oxygen into the atmosphere, and this oxygen, biological process, which is the biological process? Photosynthesis. During photosynthesis, they give out carbon dioxide, and this carbon dioxide, it is the life gas. All living organisms present on the surface of the earth, they take this oxygen only there as a food. So here this process, carbon dioxide plus water combines with sunlight, and in presence of sunlight and chlorophyll, they form glucose, and carbon dioxide is given out. So this process involves two reactions, light reaction and the dark reaction. Light reaction, it is also known as the photochemical phase. So there are the two phases are there, photochemical. Photo means light. In presence of light, the chemical reactions occur, that is called the photochemical. So light reaction was first studied by the Hill. After his name, it is also known as the Hill reaction. The process is completed in the granum of the chloroplast. See, granum, they are made up of thylakoids. When thylakoids are placed one above the other, a heap is formed. जैसे अगर आप क्वार्टर प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो जो हीप होगी वो ग्रैनम कहलाती है. लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होती है और डार्क रिएक्शन स्टोमा में. ये हीप लाइक प्लेट्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और इनके बीच में ये आपस में कनेक्टेड होते हैं लैमेली से, और इनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन थी. डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके रिएक्शंस को लाइट की आवश्यकता नहीं होती. लाइट रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उसमें उनको लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको लाइट रिएक्शन कहते हैं. तो जो लाइट रिएक्शन होती है ग्रैनम में जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ मेनी थाइलेकॉइड्स. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये इसमें दो डिस्टिंक्ट ट्रैपिंग सिस्टम होते हैं अलग, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. जो मेन स्टेप्स लाइट रिएक्शन में होते हैं वो तीन. फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस ट्रैपिंग ऑफ लाइट, फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर का स्प्लिट होना, फोटोलिसिस. इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस present over there, and reduction of NADP to NADP का NADPH2 में बदलना. तो इसमें आज जैसा कि मैंने आपको बताया दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. तो फोटो सिस्टम 1 वो होता है जो 700 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, और फोटो सिस्टम 2 होता है क्लोरोफिल ए, इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं. ये 673 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. तो जब इसको ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने में जो फोटो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के जो आउटर साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सनलाइट से उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे फोटो सिस्टम 1 में 673 मिलो माइक्रोन की वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की, उससे दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए. ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल था
वो एब्जॉर्ब, प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल से ये साइटोक्रोम B6 में आए, साइटोक्रोम B6 से ये साइटोक्रोम F में आए, साइटोक्रोम F से ये प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल्स में आए, प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल से ये वापस फोटोसिस्टम 1, ये वापस अपनी जगह पे नहीं जाते, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसी जगह फोटो सिस्टम 1 जो है 700 मिली माइक्रोन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल्स में जाते हैं। जब फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल्स में जाते हैं तो NADP रिड्यूस होकर के NADPH2 में बनता है, NADPHH मॉलिक्यूल। अब ये H मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, भाई यहाँ से तो रिलीज किया, तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ये पास हुए, पास होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स पास होकर के वापस यहाँ आ गए, तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में हो गया, वापस अपनी स्टेट में आ गए। और इस इलेक्ट्रॉन्स के पास होने, जब यहाँ से ये फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल के पास जाता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ये इसमें रिड्यूस होता है। हाइड्रोजन आयंस फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जाते हैं। जब वाटर होता है, वाटर ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयंस में, तो जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस ये कंबाइन होते हैं NADP से NADPH2 के फॉर्मेशन में, और जो हाइड्रोक्सिल आयन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं, जो अनऑक्सीडाइज स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो हाइड्रो से वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फेरेडॉक्सिन मॉलिक्यूल के पास है, फेरेडॉक्सिन से मॉलिक्यूल से साइटोक्रोम B में गए, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल में, और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वजह एक पूरा साइकिल बनता है, इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के फोटो सिस्टम 1 में आते हैं, ये वापस नहीं जाते, तो जो वापस अनऑक्सीडाइज, तो जब हाइड्रोक्सिल आयंस से इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो फोटो सिस्टम 2 में जाकर के इसको ऑक्सीडाइज स्टेट में करते हैं, और इससे वाटर बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। आई होप इट इज क्लियर। दिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलेकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट अकर्स। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हाइड्रोक्सिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। इसे फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लाइट। हाइड्रोजन आयंस फोटोलिसिस वाटर से जो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन से NADPH में जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, हाइड्रोजन आयन आया, तब उससे जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जो NADP जो E थे, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस, तब वो मिला के NADPH में चेंज होते हैं। तो ये जो NADPH में चेंज हुए उसी से ही जो है आगे हर्ट्ज रिएक्शन। अब इसके बाद तो इस लाइट रिएक्शन में 2 चीजें हुई, फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब यहाँ पर मॉलिक्यूल प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B में जाता है, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में जाता है, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, तो जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में जाता है तब ये ADP मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फोलिपिड्स ATP में बदलते। तो यहाँ 2 चीजें हुई, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, और यही एनर्जी डार्क रिएक्शन में रिलीज होती है। जब यहाँ पर वाटर हुआ, फिर ये एनर्जी रिलीज होती है रिवोल्यूस डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर के, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिवोल्यूस डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनाता है और रिवोल्यूस डाइफॉस्फेट वापस देता है। जैसे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन या काल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन या काल्विन साइकिल, काल्विन साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसमें 3 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें भी 3 स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे होता है, रिवोल्यूस डाइफॉस्फेट केमिकल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड वो तुरंत चेंज हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
चेंज हो जाता है डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होने के लिए जो इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल से होती है, एटीपी और एनएफसी। फिर ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड में चेंज होता है, और जब ये फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड में चेंज होता है और तभी NADPH जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और हाइड्रोबॉन्ड्स फॉर दिस रिएक्शन, उसके लिए एनर्जी NADPH2 से मिलती है। अब जब ये इसे फॉस्फोग्लिसराइड है तब इसमें क्या ग्लूकोज का फर्क, जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबेल्यूज, भाई एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया तो 2 फॉस्फोग्लिसराइड एसिड बने, जब 6 होंगे तो 12 बनेंगे, 12 फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसमें क्या रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट से 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसराइड के, भाई एक से 2 बने, तो जब 6 रिएक्ट करेंगे तो 12 बनेंगे, 12 बनेंगे। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड एक्सो शुगर, और इससे हेक्सो शुगर बनी और रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट अगेन वापस में चेंज होता है। यहाँ क्या होता है दो, सो ये 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पासिंग थ्रू, तो इससे इसको बनने के लिए इसमें कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आप अपने आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपका नहीं है। हेक्सो शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में कंबाइन करके फिर से जो है स्टार, यहाँ आपके सिलेबस में खाली रिएक्शन है कंबाइन, देखिए 6 रिबेल्यूज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये जो बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये 6 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें, उसके साथ 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो एटीपी मॉलिक्यूल्स लाइट रिएक्शन में बने, और प्लस NADPH2 जो उसे बने, तो ये इन दोनों से एनर्जी मिली, प्लस कार्बन और रिबेल्यूज ये बाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट होता है, बी नहीं है डी है, ये इट इज रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी मॉलिक्यूल से बने। तो इससे क्या होता है 6 मॉलिक्यूल्स रेगुलर्स ऐसे बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, और जो एडीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी रिलीज करके एटीपी एडीपी में चेंज हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते निकलते हैं, जो जब एटीपी एडीपी में चेंज होगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, और फॉस्फेट बॉन्ड्स के रिलीज होने से ही हमें मतलब एनिमल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे कि एनिमल्स एनर्जी प्लांट से एनिमल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है, और NADPH रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑक्सीडाइज होके NADP में चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए आप ओवरऑल रिएक्शन शब्द देखिए, क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रैनम और स्ट्रोमा। ग्रैनम टेक्स इन द ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। जब लाइट रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एटीपी और NADPH2, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, O2 इज गिवन आउट, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्ट्रोमा में डार्केशन रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, उससे एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बना, 6 कार्बन कंपाउंड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसराइड है तब जो एटीपी और NADPH मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो एनर्जी गेन होती है वो इसमें यूटिलाइज होती है। फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल शुगर के बनते हैं, और शुगर के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के स्टार्च मॉलिक्यूल, और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट में चेंज होता है, ये रिबेल्यूज डाइफॉस्फेट वापस डार्क रिएक्शन में दोबारा काम होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क मी। अब इसके साथ एक चीज इसमें और आती है, दैट इज द कार्बन साइकिल। इट इज इन योर सिलेबस of the ICSE just is given. Now see just here the carbon cycle. कार्बन साइकिल में क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में लिया, उससे फूड बनाया, फूड से ऑक्सीजन निकली, दैट ग्रीन प्लांट्स दे गिव इट द फूड टू द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स को प्रोवाइड किया। नॉन ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ग्रीन प्लांट्स अगर डाई होते हैं, डेड और मतलब
खत्म हुए, टूटे फूटे, टूटने फूटने के बाद डेथ में क्या होता है, एनिमल रेसिड्यूज। तो रेसिड्यूज माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के थ्रू कंपोज होकर के वापस नेचर में मिले, या प्लांट और एनिमल का जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक और है वो भी जलाने के बाद बॉडी कंबशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो भी रिड्यूस हुई, या बैक्टीरिया और फंजाई रेस्पायर करके वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलते थे। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल नेचर में चलता ही रहता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और जो चीजें होती हैं इसमें कि हाउ कैन यू से दैट देयर आर आल्सो सर्टेन कि एडेप्टेशंस क्या होती हैं लीफ में जिससे कि फोटोसिंथेसिस है। देखिए, लीफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिससे कि वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करे। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, आप देख किसी पेड़ पे अंदर जो होते हैं पेड़ की पत्तियां होती हैं और ऊपर जो होता है पूरा उसमें जो होता है वो उसमें छैला होता है, ऊपर लीव्स होती है। द लीव्स आर स्प्रेड इन सच ए वे सो दैट दे कैन रिसीव, मतलब इस तरह से फैली होती हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करें, और पतली होती हैं जिससे इजीली ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि स्ट्रोमेटा नीचे की तरफ ज्यादा होते हैं ऊपर की तरफ कम होते हैं और थिन होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो कंसंट्रेटेड अपर लेयर्स में है तो या तो ये डबल होगी, तो जो आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं वो उसमें दोनों साइड स्टोमेटा बराबर होते हैं। जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है उसमें नीचे साइड में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर साइड में स्टोमेटा कम होते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एनी डाउट, अगेन वी विल मीट in the next video. Thank you, children.